Write down question number 3rd. Okay. Question number 3rd on cross product. Write down the question. If A and B are two vectors, if A vector and B vectors are two vectors, then prove that A cross B whole square, that will be equal to what? That will be equal to determinant of A dot B, B dot A, B dot A and B dot B. You have to prove this, है ना? आपको prove करके दिखाना है. If A vector and B vector are two vectors, then prove that A cross B whole square, that will be equal to A dot B, B dot A and B dot B. Okay, let's solve this question. इस question को हम लोग solve करते हैं. Means you have to express this vector in form of 2 by 2 determinant. Okay, you have to express this vector in 2 by 2 determinant. Okay. Sorry. A cross B whole square, that is equal to what? A cross B की हम बात करें तो A cross B का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, इस पूरे का होल स्क्वायर. तो इट विल बिकम A क्रॉस B होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ A. मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं? सिंपल A स्क्वायर लिख रहा हूं. तो इट विल बिकम A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. And what is the magnitude of n cap square? That is equal to what? 1. So it will become A square B square sin square theta. I am writing it. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Then it will become A square B square minus A square B square cos square theta. Remember one thing. ये A and B are what? Magnitude of A. Okay. तो इसको मैं लिख सकता हूं A dot A into B dot B. ए स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए डॉट ए और बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया बी डॉट बी माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा इज व्हाट? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम ए डॉट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया. तो इट विल बिकम ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर. तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं? हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी. तो यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, अगर मुझे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? दिस इंटू दिस. तो ए डॉट ए इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट बी को अगर मैं बी डॉट ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? ए डॉट बी होल स्क्वायर, ए डॉट बी होल स्क्वायर. क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं. नोट इट डाउन. Write down next question. What is the next question? Question is, if A vector comma B vector and C vector, if A vector comma B vector and C vector are the position vectors of the vertices A comma B and C respectively of triangle ABC, prove that the perpendicular distance of the vertex A from the base BC of the triangle, from the base BC of the triangle, ABC is
magnitude of A cross B plus B cross C plus C cross A divided by magnitude of C vector minus B vector. ये आपको प्रूफ करके दिखाना है. क्या दिया हुआ आपको? इफ A vector, B vector and C vector are the position vector of the vertices. ये आपको vertices दिए हुए, A का vertices, B का vertices and C का vertices respectively of a triangle ABC. Prove that the perpendicular distance of the vertex F from the base BC of the triangle ABC is given by this. Okay? Let's draw the diagram. डायग्राम बना के हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या. तो आई एम ड्रॉइंग अ ट्राइंगल ABC. आई एम ड्रॉइंग अ ट्राइंगल ABC. This is my A. This is my B. What is A? What is it? Is A vector. This is B vector and C what is what? C what is? What he want to say? Want to say prove that the perpendicular distance of the vertex है from the base BC. बेस BC से जो A का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको नाम देता हूं क्या? M. तो आपको क्या फाइंड करना है यहां पे? आपको AM की लेंथ फाइंड करनी है और AM की लेंथ फाइंड करके आपको बताना है किसके बराबर आना चाहिए? S के बराबर आना चाहिए. तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एयर. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट BA क्रॉस BC. मैं इसको फाइंड करने जा रहा हूं. किसको फाइंड करने जा रहा हूं? BA क्रॉस BC को. तो इट विल बिकम व्हाट इज BA वेक्टर? BA vector will be A vector minus B vector. So it will become A vector minus B vector cross what is BC vector? What is BC vector? It is C vector minus B vector. C vector minus B vector. ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ BA vector क्रॉस BC vector. दैट विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस B and minus B cross C that will be equal to magnitude of बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा A cross C then minus of A cross B, so it will become what? It will become A cross B plus B cross C plus C cross A. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा. B क्रॉस B तो हमारा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, अगर कोई भी माइनस आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा. तो इट विल बिकम A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A. अब हम बात करते हैं, ये आपने लिखा किसके बराबर है? दिस इज व्हाट? A क्रॉस B. अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो ये A क्रॉस B के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ BA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC इंटू व्हाट? साइन थीटा. अब हम थीटा की बात करते हैं. थीटा की बात करते हैं तो आप किसके लिए निकाल रहे हैं? BA और BC के लिए निकाल रहे हैं. BA और BC के लिए कैलकुलेट करने हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कैपिटल B. आई एम टेकिंग दिस एंगल इज कैपिटल B. तो साइन B दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A. ये मैंने कैसे लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा. ये हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में. अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ BA की. तो BA को मैं AB भी लिख सकता हूं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB ओके इंटू साइन B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC. अगर मैं BC की बात करूं तो उसको क्या मैं लिख सकता हूं? वेक्टर C माइनस B. वेक्टर C माइनस B. BC इज इक्वल टू व्हाट? C माइनस B. मैंने AB को BA को लिख दिया AB वेक्टर, साइन B को वैसा का वैसा और BC वेक्टर को लिख दिया C वेक्टर माइनस B वेक्टर. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस A. यहां तक हम लोग पहुंच गए. तो हम लोग इस चीज को देखते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB साइन B दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस B. ओके, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया. अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं AB साइन B की, AB साइन थीटा, अगर मैं बात करूं इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, अगर मुझे AB का परपेंडिकुलर लेना है, सॉरी कंपोनेंट लेना है, तो AB का कंपोनेंट एक तो क्या आएगा? AB cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या? AB sin थीटा. तो AB sin थीटा मेरा किसके बराबर होगा? AM के बराबर. आप ध्यान से देखिए, अगर आप AB का कंपोनेंट लेंगे थीटा के अलोंग, यानी B के अलोंग अगर आप इसका कंपोनेंट लेंगे तो इट विल बिकम व्हाट? BA cos थीटा. और अगर आप इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे तो इट विल बिकम व्हाट? BA sin थीटा. यानी मैं बोल सकता हूं AB sin थीटा या BA sin थीटा को मैं किसके बराबर बोल सकता हूं? AM के बराबर. और वही डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी. A वर्टिसेस से लेके बेस B तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो आपको फाइंड करना था. दैट इज इक्वल टू व्हाट? AM. दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? C माइनस B. Hence this is proved. Okay, note it down.
Our next topic is scalar triple product. Scalar triple product. Okay. When we talk about dot product, cross product, triangle law of factor addition, parallelogram law of factor addition, polygon law of factor addition, these things we are familiar with physics also, because physics में भी ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं. डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. वी आर फैमिलियर विद इट. बट हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें और हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम कहां पढ़ते हैं? इन दोनों प्रोडक्ट्स को केवल हम मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की. तो इसको बोलते हैं एसटीपी. इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? एसटीपी. एसटीपी का मतलब क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी. या फिर इसको और नाम भी दिया जा सकता है. इसको नाम दिया सकता है मिक्स प्रोडक्ट. इसको मिक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है, या फिर इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है. बॉक्स प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है मैं भी बताऊंगा आपको. इसको एसटीपी भी बोला जाता है, मिक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है. तो अगर मैं बात करूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो इट इज द dot product of one vector with the cross product of two vectors. तो जब भी हमें बोला जाए कि हमें एसटीपी कैलकुलेट करना है, या बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, या मिक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस और एक वेक्टर का डॉट. तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर. मैंने यहां पे क्या लिख दिया? ए क्रॉस बी डॉट सी. अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी के बारे में. तो हमने बोला ये हमारा क्या है? दिस इज अवर एसटीपी. दिस इज अवर एसटीपी बोलो, या मिक्स प्रोडक्ट बोलो, या बॉक्स प्रोडक्ट बोलो. तो इट इज द क्रॉस ऑफ टू एंड डॉट ऑफ वन. एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के क्रॉस के साथ. तो इस तरह से लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी. ठीक है. तो हम बात करें इसको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी. कभी भी मैथमेटिक्स में आपको बोला जाए कि आप डॉट, इस एसटीपी में एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है. वो प्रॉपर्टी क्या फॉलो होती है कि डॉट और क्रॉस की पोजीशंस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं. तो यहां पे क्रॉस था और यहां पे डॉट था, तो आप यहां पे डॉट लिख सकते हैं और यहां पे क्रॉस लिख सकते हैं. ठीक है. तो हम बात करते हैं किसके बारे में? ए डॉट बी क्रॉस सी के बारे में. तो ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी. क्या लिख सकते हैं इसको? बॉक्स ऑफ एबीसी. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट. इसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, है ना. तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया. दूसरी बात, अगर मैं एक और बार लिखना चाहूं तो इट विल बिकम व्हाट? बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर. उसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है. कैसे? सी ए बी. अब एक बात आप ध्यान रखिए, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो मैं साइक्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए ये बातें लिख रहा हूं. साइक्लिसिटी मतलब कैसे? अगर मैं एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, देन ए विल कम फर्स्ट, बी विल कम सेकंड एंड सी विल कम थर्ड. एबीसी. इफ यू आर डूइंग दिस एबीसी, तो आप एबीसी को बीसीए भी लिख सकते हैं. आपने साइक्लिक ऑर्डर को तोड़ा नहीं है. ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद वापस घूम के क्या आएगा? ए. तो इट विल बिकम व्हाट? एबीसी. एबीसी के बाद मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? बीसीए. फिर आप साइक्लिक ऑर्डर में दोबारा स्टार्ट करेंगे कहां से? सी से. तो सी से स्टार्ट करेंगे तो कैसा जाएगा? सी ए बी. तो इस बात का ध्यान रखिए कि बॉक्स प्रोडक्ट में साइक्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अगर मैं बात करूं बीसीए की, अगर मैं यहां पे साइक्लिक ऑर्डर तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर. जैसे ही मैं साइक्लिक ऑर्डर को तोड़ूंगा तो मुझे एक बाहर माइनस मिल जाएगा. मेरे पास बी वेक्टर था, सी वेक्टर था, ए वेक्टर था. मैंने सी और ए की क्या की? पोजीशन चेंज कर दी. और जैसे मैंने सी और ए की पोजीशन चेंज की, ए यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, तो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया. दैट इज इक्वल टू व्हाट? एक और बार लिख सकता हूं सी. इन दोनों में ए और बी की पोजीशन चेंज कर दूंगा तो माइनस टाइम्स ऑफ इट विल बिकम व्हाट? बी वेक्टर एंड ए वेक्टर.
तो एसटीपी कैलकुलेट करते हुए साइक्लिसिटी का ध्यान जरूर रखें। अगर आप एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो एबीसी का निकाल रहे हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, अगला आपका क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बीसीए, अगला क्या होगा आपका बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सीएबी। इस बात का ध्यान रखें। और आप दो वेक्टर्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, आगे माइनस का साइन आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहीं पे हम लोग बहुत सी बार गलती कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये चीज होती क्या है। बेसिकली ये चीज होती क्या है, तो आई वॉन्ट टू फाइंड ए क्रॉस बी डॉट सी। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने पिछली क्लास में ए वेक्टर को क्या अज्यूम किया था, a1 i कैप प्लस बी, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर को क्या अज्यूम किया था, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और सी वेक्टर को क्या अज्यूम किया था, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a क्रॉस b डॉट सी। तो a क्रॉस b का मतलब क्या होगा, i j और k। मुझे क्या निकालना है, a का b के साथ क्रॉस निकालना है। तो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू i j k। व्हाट इज a वेक्टर, इट इज a1 a2 a3। व्हाट इज b वेक्टर, b वेक्टर इज योर b1 b2 b3। देन c के साथ हम लोगों को इसका डॉट लेना है। अगर c के हमको इसके साथ डॉट लेना है तो इट विल बिकम व्हाट, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो c का हम इसके साथ डॉट ले रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके साथ डॉट ले रहा हूं तो मैं फर्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट, a क्रॉस b डॉट c विल बिकम c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप डॉट i। देन इट विल बिकम c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप डॉट j। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप डॉट k। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट a1, दिस इज व्हाट a2, दिस इज व्हाट a3, दिस इज b1, दिस इज b2 एंड दिस इज b3। इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं a क्रॉस b डॉट c वेक्टर की बात करूंगा तो यहां पे आप c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप का i के साथ डॉट लेंगे। तो c1 i डॉट i तो कितना हो जाएगा 1, j डॉट i आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। k डॉट i भी कितना हो जाएगा 0, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम c1, इट विल बिकम c2, इट विल बिकम c3, देन a1 a2 a3, देन b1 b2 b3। ठीक है, नाउ फाइनली a क्रॉस b डॉट c वेक्टर विल बिकम, मैं दो बार इनकी पोजीशन इंटरचेंज करूंगा। डिटरमिनेंट में वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी, इफ यू चेंज रोज एंड कॉलम odd number of times then minus will come, if you change it even number of times then it will remain same। तो मैं c1 c2 c3 को नीचे लेके आ रहा हूं, इसका मतलब एक इंटरचेंज। तो b1 b2 b3 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर b1 b2 b3 को सेकंड पे लेके आ रहा हूं, एक ऊपर लेके जा रहा हूं। तो मैंने कितनी बार इंटरचेंज किए, दो बार इंटरचेंज किया। तो दो बार इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इफ यू मेक ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस then the minus will come outside, and if you do even number of interchanges then the determinant will remain same। so it will become what, it will become a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3। so this is the very important result। आप देख सकते हैं कि जब भी आपको बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर मिक्स प्रोडक्ट निकालना है तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बी डायरेक्टली बिकम a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3। डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ओके, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, ए क्रॉस बी डॉट सी। लिखें इसको, चाहे आप इसको लिखें ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो वैल्यू
of STP will not change if we change the position of dot and cross. तो क्रॉस और डॉट की पोजीशन आप एसटीपी में चेंज कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज लाइक k टाइम्स, ऐसे लिखा हुआ आपके पास k वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर. इसका अगर आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे k क्या है, एक स्केलर है, एक स्केलर क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, a वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है. तो आप स्केलर को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. तो इट विल बिकम व्हाट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी. दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर. देन अगला दिया हुआ है आपको c वेक्टर और अगला वेक्टर आपको दिया हुआ है d वेक्टर. आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है किसका, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का. देन c वेक्टर दिया हुआ है, देन d वेक्टर दिया हुआ है. तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम a c d का बॉक्स प्रोडक्ट प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, b c d. ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b, तो ये किसके बराबर होगा, 0. जब भी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम आएंगे तो वो बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, 0. इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर a इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, a क्रॉस b, या फिर मैं बोल सकता हूं और a डॉट a क्रॉस b, ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है. तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी एसटीपी में या फिर बॉक्स प्रोडक्ट में या विक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर. फिफ्थ, इफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी कम्स ग्रेटर देन 0, अगर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है देन इट विल फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम. एंड इफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का वैल्यू लेस देन 0 आता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है, then it will form लेफ्ट हैंड सिस्टम. इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सी बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट हैंड सिस्टम फॉलो करने के लिए 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसका एसटीपी निकालेंगे और एसटीपी शुड बी ग्रेटर देन 0, और लेफ्ट हैंड सिस्टम के लिए एसटीपी शुड बी लेस देन 0. प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ a, b and c are 3 non-zero and non-collinear vectors, then the condition for these three vectors to be coplanar is box product of ABC that will be equal to 0, या फिर मैं लिख सकता हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 या फिर C1 C2 C3. इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी. अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, तीनों ही वेक्टर कैसे, नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा. किस कंडीशन पे 0 के बराबर आएगा, जब तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर. ठीक है, नोट इट डाउन. आई एम राइटिंग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नोट इट डाउन. प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर आपको बोला गया है x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर और z1 c वेक्टर, दूसरा है आपके पास x2 a वेक्टर y2 प्लस y2 b वेक्टर प्लस z2 c वेक्टर, देन x3 a वेक्टर प्लस y3 b वेक्टर प्लस z3 c वेक्टर. इस तरह से आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, x1 x2 x3 y1 y2 y3 and z1 z2 z3 into box product of ABC. जब भी आपको 3 लीनियर वेक्टर इस तरह से दिए गए हों, एक वेक्टर आपका पूरा ये है,
This is the linear combination of second vector. This is a linear combination of third vector. और आपको बोला जाए इनका STP आपको कैलकुलेट करना है. अगर आपको STP कैलकुलेट करना है इनका, then all the scalars will come here. x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Determinant of this that into multiplied by what? Box product of ABC. This is very important result. This is very important result. So you should remember the formula for this result. Okay. Next property. Next property. Your next property is property number 8. Write down property number 8. Property number 8 is the geometrical interpretation. The geometrical interpretation of box product is the geometrical interpretation of box product is that it will give the volume of Palo piped. It will give the volume of Palo piped. Okay. तो हम बात करें बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एसटीपी की. तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एसटीपी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एसटीपी इज व्हाट? तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ Palo piped. Okay. Volume of Palo piped. Next property number 9. Next property is your property number 9. Okay. The other geometrical interpretation of box product is it also gives the volume of tetrahedron. What is tetrahedron? अगर हम tetrahedron की बात करें तो tetrahedron is a pyramid like structure which is having a triangular base, है ना? अगर हम tetrahedron की बात करें तो tetrahedron is our what? Tetrahedron is our pyramid like structure having triangular base. तो volume of tetrahedron की हम लोग बात करते हैं तो volume of tetrahedron will be equal to 1/6 times STP. 1/6 times STP. So these are the some important properties of STP or box product. Okay. The main important properties are the geometrical interpretation of STP. The first geometrical interpretation is if you calculate only box product, STP, then it will give you what? Volume of Palo piped. If you take 1/6 times of that, then it will equal to what? It will be equal to volume of tetrahedron. Tetrahedron is a pyramidal like structure which is having a triangular base. Note it down.